الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منظر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس منظر پہ آپ توجہ کریں۔ ایک بندہ مدینہ منورہ سے چلتا ہے، اس کے پاس ایک بیمار خچر ہے، بالکل بیمار، کمزور، اور جو خچر پہ سوار ہے وہ خود بھی بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مانگتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی یاوری کی جائے، اس کی جیب میں کچھ ڈالا جائے، اور اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی غریب فقیر کی مدد کر سکے۔ خود مدد کا طالب ہے لیکن سوال نہیں کرتا، بالکل سوال نہیں۔ اور وہ مدینہ منورہ سے چلا ہے اور اس کی منزل وہ علاقہ ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، وہاں رہتا ہے۔ مدینہ میں کیوں آیا تھا؟ مدینہ میں جو مدینہ کا گورنر تھا، اس کے دل میں آیا کہ اس کے پاس جاؤں اور کچھ مدد طلب کروں۔ آیا، کئی دن رہا۔ گورنر کو ایک دفعہ اس نے مسجد نبوی میں دیکھا، لوگوں کی فریادیں سن رہا، حکم جاری کر رہا۔ جب دیکھا ایک طرف گورنر کو، ایک طرف حضور کے روضوں کو دیکھا کہ حضور کے روضے کے سامنے اور حضور کے سامنے میں اس گورنر سے سوال کروں، دکھ ہوتا ہے، میری حیا، میرا شرم گوارا نہیں کرتا، کیوں سوال کر؟ پھر جرأت ہوئی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، فقر ہے، غربت ہے۔ یہ گورنر ہے اس لیے کہ غریبوں کی داد رسی کرے، غریبوں کی فریاد سنے، غریبوں کی مدد کرے، اور جو مدد کے طالب ہیں ان کے احساس کو اپنا احساس غم۔ پھر ایک بار پھر موقع ملا، پھر حضور کا روضہ یاد آیا۔ اسی کشمکش میں اسے پورے 40 دن گزر گئے، اور پتہ نہیں کیسے اس نے پیٹ بھرا، اور اپنے خچر کا پیٹ کیسے بھرا، اور کتنے مہینوں کی مسافت کے بعد وہ پہنچا۔ کوئی گھنٹوں کی مسافت، کوئی منٹوں کی مسافت نہیں تھی، اور ایک آس لے کے آیا تھا کہ مدینہ کا گورنر ہے، اس کے پاس جاؤں گا، کچھ مدد مل جائے گی، کچھ 4 دن سکھی گزر جائیں گے، کچھ زندگی میں سہولت مل جائے گی۔ آخر مایوس ہو کے اب یہ مدینہ سے واپس آ رہا۔ یہ اس کا پس منظر جو میں نے عرض کیا، اس پردیسی کا، مختصر سا، ورنہ اس کے 40 دن پتہ نہیں کتنی تنگ دستی، کتنی تکلیف، کتنے مسائل۔ اب وہ واپس آ رہا۔ واپس آتے آتے ایک جگہ ایک کاروان سرائے ہوتی تھی، سرائے ہوتے تھے جہاں پردیسی مسافر لوگ آ کے ٹھہرتے تھے۔ اب اس کے پاس پیسے تو تھے نہیں کہ یہ سرائے میں، لیکن سرائے کے ساتھ ایک جگہ کچھ خچر بندھے ہوئے تھے، اور ان کا بچا ہوا گھاس پڑا تھا، چارہ پڑا تھا۔ اس نے اپنے خچر کو وہاں چھوڑا۔ خچر کو کئی دنوں کے بعد اچھا پیٹ بھر کے اور اچھا کھانا ملا، لیکن اس کو کھانا نہ ملا، یہ بھوکا تھا، اوپر سے سخت سردی، اور سرائے کے ساتھ جہاں روٹی پکتی تھی، اس تندور کے ساتھ رات کا وقت تھا، یہ سو گیا اور اپنے آپ کو اس میں سمیٹ لیا کہ کچھ تندور کی، کچھ وہاں اس میں کچن کہوں جہاں کھانا پکتا، اس کی گرمی کچھ مجھے۔ لیکن رات کا وقت ہوا، تندور کی گرمی ختم ہو گئی اور سردی اپنے جوبن پہ پڑی۔ اس کا جسم اکڑنے لگا، اٹھ کے بیٹھ کے، سکڑ کے بیٹھ، اور اس کے منہ میں سے ایک لفظ نکلا، واللہ واللہ ثم باللہ، واللہ ثم باللہ۔ مولا میں کہاں جاؤں؟ اب کس کا راستہ؟ اب کون سا سائبان اور کون سی گرمی کے لیے اپنے جسم کو؟ اور اپنی طرف دیکھا تو خچر بھی بیچارہ سردی کے اندر کانپ رہا ہے۔ اسے اپنی سردی تو بھول گئی خچر کی، اگر یہ مر گیا تو میں منزل پہ کیسے جاؤں گا، آگے کیسے جاؤں؟ اب یہ اسی پریشانی اور کشمکش میں ہے۔ واللہ ثم باللہ، میں تو الفاظ بیان کر رہا ہوں، آپ سوچیں، جس کی یہ حالت ہو کہ تن پہ پھٹے پرانے کپڑے ہوں، جیب خالی ہو، پیٹ بھوکا ہو۔ آدمی بھوکا ہو تو سردی ویسے زیادہ لگتی ہے، اور پردیس ہو، مسافرت ہو، اور کاروان سرائے میں سب بہترین زندگی میں سو رہے ہیں، ان کی سواریوں کے اوپر بھی گرم کپڑے کہوں، چادریں کہوں، اور ایک وہ سواریاں بھی ایک چھت کے نیچے ہیں۔ اس کے پاس نہ سواری کی چھت ہے، اور اس کے پاس نہ اپنی چھت ہے، اس کے پاس نہ کھانا ہے، اس کے پاس نہ گرم کھانا یا مشروب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سواری نے پھر بھی کچھ نہ کچھ کھا لیا ہے۔ اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے حالات کیا ہوں گے؟ اور یہ کس قسمہ پرسی میں، کس تنگ دستی میں، اور کس انداز سے اس نے واللہ ثم باللہ، اس نے کس انداز سے بیان کیا ہوگا، میں وہ نقشہ نہیں کھینچ سکتا۔ یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، جذبات، کیفیات کا ترجمہ، یہ میں بات پھر دہرا رہا ہوں، الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے،
जज्बात और कैफियत का तर्जमा नहीं। अब इसने फिर ये बात कही, अब दर्द के साथ इसकी बात कही और गम के साथ इसने ये बात कही। इसको महसूस हुआ कि मेरा जिस्म गर्म होना शुरू हो गया। इसने दाएं बाएं देखी, कोई गर्म हवा चली है। इसे ख्याल हुआ कि तंदूर में से गर्म हवा निकली, तंदूर तो ठंडा हो चुका, कहां से चीज मिली। अब इसको कुछ एहसास हुआ ना गर्मैश का, सुकून का, तो इसने फिर वो कैफियत के साथ वल्लाह सुम्मा बिल्लाह कहना शुरू। अल्लाह अकबर। बस ये यूं कहता था और इसके जिस्म में ताकत आती थी और महसूस किया ऐसे जैसे मैं खाना खा रहा हूं और मेरा पेट आहिस्ता आहिस्ता भर रहा है, जिस्म में तवानाई आ रही है, ताजगी आ रही है और एक कुव्वत आ रही है और सर्दी है पर सर्दी का एहसास मुझे कम हो रहा है। और उसने अपनी नज़रों से जब अपने खच्चर को देखा तो उसके अंदर भी कपकपाहट कम हो रही है, वो ऐन सर्दी के ऊपर है, कपकपाहट कम हो रही है। इसने महसूस किया कि इस लफ्ज़ की कोई तासीर है और इस लफ्ज़ को कोई ताकत मिली है, इस लफ्ज़ को कोई कुव्वत मिली। इसने पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते ना कुछ सुकून मिला तो इसको ऊँग आ गई। इसने ऊँग में देखा, इसने ऊँग में देखा कि कुछ लोग हैं, उनमें आगे एक शख्स है और वो इसको थपकी देते हैं, कहते हैं ये हमारे घर से तुम्हें ये लफ्ज़ और इसको पढ़ता रहे, इसको ना छोड़ और यही लफ्ज़ तुझे मंजिल पे पहुंचाएगा। और मदीना के गवर्नर के साथ तूने अच्छा किया, सलाम नहीं किया, मुझे मेरे हुजूर ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जा, एक साइल आया था और मेरे हया और गैरत की वजह से उसने गवर्नर से सवाल नहीं किया था, इसको कहे ये लफ्ज़ हमारे घर से मिला है और मैं इसकी ख़ास तासीर और इजाज़त देता हूँ और ख़ास तवज्जो देता हूँ, इसको पढ़, तुझे मंजिल मिलेगी, तुझे रिस्क मिलेगा, जो तो सेहत मिलेगी, तेरी सवारी को सेहत और खाना मिलेगा और तुझे जा आज के बाद तवंगरी मिल गई। इसकी आंख खुली ना तो इसने ताजगी देखी। अब सोचने लगा है कौन ये, बहुत सारी नूरानी, रूहानी और नूरी हस्तियां थी, हैं कौन। अब इस कैफियत में था लेकिन इसने फिर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते इस ऐसे महसूस हुआ बिस्तर बिछ गए हैं और इसको नींद आ गई और महसूस हुआ कि एक बेहतरीन नरम बिस्तर मखमल का, रेशम का, कीम खाब का, सो गया। बस सोया ही था वो काफिला फिर सामने आया, कहा हमारा नाम पूछता है, हम सारे बकी के रहने वाले हैं, आले रसूल हैं, असहाब रसूल हैं। और फिर एक एक का नाम बताया और जो नाम बता रहे थे वो इमाम हसन थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सलाम अल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। इमाम हसन थे। फरमाया तुझे याद है कि तेरा वालिद एक दफ़ा हमारे पास आया था और एकदम उसका नक्शा खींचा कि उसका वालिद है, इमाम हसन की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे अर्ज़ किया मेरे हालात दुरुस्त हो जाए। तो फरमाया इमाम हसन, अब वो ख्वाब में सारा नक्शा है, फरमाते हैं तेरे हालात दुरुस्त हो जाएंगे पर अल्लाह ने तेरे लिए खैर इसी में रखी है, थोड़े माल और दौलत में अल्लाह के पास चला जा, वुसअत तेरे बेटे के पास है और फिर उसकी नस्लों के पास है, खुशहाली वुसअत। और याद रख तेरा बेटा मदीने आएगा, 40 दिन यहाँ गुजारेगा, हुजूर के हया और शर्म की वजह से, गैरत की वजह से किसी से सवाल नहीं करेगा। फिर उसे एक लफ्ज़ अता होगा गैब से, वो होगा वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वो लफ्ज़ अता होगा। उस लफ्ज़ के बाद उस लफ्ज़ को इसकी विजदान की कैफियत में अता होगा, दर्द की कैफियत में अता होगा, लेकिन पहले उसकी आजमाइश ली जाएगी 40 दिन, गुर्बत से, तंगदस्ती से, बीमारियों से, दुखों से, न खाना, न दवा, न पीना, न सुख, न आराम, लेकिन वह हमारे मदीने में बावकार हो के रहेगा और हुर्मत मुस्तफ़ा, इज़्ज़त मुस्तफ़ा का ख्याल रखेगा, पास करेगा और उनका लिहाज रखेगा। इस हुर्मत मुस्तफ़ा, इज़्ज़त मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा का घराना आएगा और उसका साथ देगा, कमली वाले का घराना आएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब ये ख्वाब में सारा नक्शा वालिद का देख रहा है। अचानक वालिद का नक्शा खत्म हुआ। अच्छा, वालिद ने एक दफा ये बात बताई थी मुझे और मुझे तो भूल गई, ये सारा नक्शा वही दोहराया गया है। उसने सिर्फ कमली वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, उसके आला साहब और उसके आल का हया किया था, बस हया किया था और उनका लिहाज किया था। मैं हुजूर के रोजे के सामने किसी और से सवाल करूं, गवर्नर लोगों को अशरफियों की थैलियां दे रहा था, हुक्म जारी कर रहा था, इतनी दे दो इसको, इतनी दे दो इसकी, और पूरी उसकी ममलिकत से लोग आए हुए थे और वो सब की दादरसी कर रहा था और वो गवर्नर था ही दादरसी के लिए, पर इसने नहीं किया। उनको थोड़ा माल मिला
جو 100 शर्फी 200 500 हज़ार ख़त्म हो गया, पर इसने अपनी नस्लों के लिए तमंगरी, माल, बख्त, नेमत, चीज़ें ले ली। और वह किस वजह से? सिर्फ अल्लाह के हबीब का हया किया और अल्लाह के हबीब की आल से हया किया, बकी में सामने असहाब से हया, और उसकी वजह से अल्लाह जल्ल शानहू ने उसके लिए वुसअत बरकत के दरवाजे कैसे खोले। अब रात यहाँ कारवानसराय में रहा। सुबह उठा तो देखा कि सवारी भी हशाश बशाश, खुद भी हशाश बशाश, और सवारी तेज दौड़ रही है और लोग हैरान हैं। और ये मंजिलें तय करता करता हर जगह जहां भी रहता था रात को, इसके लिए रात मखमल बन जाती थी, जहां भी रहता था। जब आया था कसमा पुरसी की रात थी, जब आया था तो गुर्बत की रात थी। गुर्बत की भी होती है अजब सुबह अजब शाम, करता है सफर जब काफिला राहत तो आराम। आया था, हालात ये थे, अल्लाह आजमा रहा था। याद रखिएगा, मेरा अल्लाह पाक बाज़ औक़ात बंदों को आजमाता है, कच्चे हैं या पक्के हैं, मेरे हैं या गैर के हैं। मुझसे नजर तो नहीं हटाते, अल्लाह से नजर नहीं हटी, अल्लाह के हबीब से नजर नहीं हटी। अब जहां भी रात गुजर रही है, दिन है, तरह तरह के मेवे खाने को मिल रहे हैं, लोग खुद ब खुद ला रहे हैं, सुला रहे हैं और इसको बिस्तर दे रहे हैं। हर बंदा इसको इस्तकबाल कर रहा है ऐसे जैसे जानता हो, और ये हर बंदा इसका दोस्त हो या इसका अपना हो या इसका भाई हो। हैरान। पर कभी कभी बैठ के ना सोचता था, ये मेरे नसीब कैसे खुले। आवाज़ अंतर से आती थी, हमारा नाम ले और उस दर्द से लेना, ख्याल करना बगैर दर्द के हम इस नाम की तासीर नहीं देंगे, बगैर यकीन के हम इस नाम की तासीर नहीं देंगे। और फिर यह दर्द से ऐसे कह के, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह। यकीन जानी मुझे मज़ा आना शुरू हो गया। मेरे मुंह में पानी भरा है, मेरे मुंह में पानी भरा है। इसकी लज्जत, इसकी चाशनी। अल्लाह का नाम कैफियत से लिया जाए, दर्द से लिया जाए। हाँ, आज 13 मुहर्रम उल हराम है। 13 मुहर्रम उल हराम में मैंने एक आपको छोटा सा तोहफा दिया है, एक नुक्ता दिया। वो खच्चर, उसकी गुर्बत, तंगदस्ती, वो इंसान। गुर्बत अरबी में मुसाफरत को कहते हैं, मुसाफिर होने को कहते हैं। वो इंसान, उसकी गुर्बत और तंगदस्ती, और उसके घर के हालात क्या होंगे। और 40 दिन के बाद घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, जाएगा कुछ लेके आ। जब गया ना घर, मंजिलें तय करते, राहत का सामान, राहत का सफर। जब घर पहुंचा और घर पहुंचते ही देखा कि घर में तंकरी का सामान है। ये क्या? खाना, चीजें, गोश्त, मेवे, नेमत। उसने कहा, आपने किसी के साथ तिजारत की थी और एक ताजर आया था, उसने कहा बहुत नफा हुआ तिजारत की, ये इनका जो नफा है वो मैं उनके दे के जा रहा हूँ। हमने रोका भी सही, उसने कहा नहीं, मैंने आगे तिजारत पे जाना है, मेरा आगे काफिला जा रहा है। हमने रोका भी सही। कौन ताजर था, क्या होलिया था? उसने कहा ये होलिया था, मैंने तो किसी से तिजारत नहीं की, मेरे पास था ही कुछ नहीं। कहा जाते हो बस कह गया था कि वल्लाह सुम्मा बिल्लाह को ना छोड़ना। हमें समझ नहीं आई ये क्या है। तो एकदम इसकी हाय निकली। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। इमाम हसन बिन अली वो तशरीफ लाए और फरमाइए तुझे हमारे घर से मिला है, और वो तुझे हमारा हया, तूने हमारा लिहाज किया है, तूने हमारा शर्म और हमारा अदब, उसकी वजह से तुझे मिला। ओ घर में फिर दौलत और वुसअत और बरकत के जो खजाने लुटे और मिले। कहा कि फिर उस घर में हर वक्त एक सदा आती थी, वल्लाह सुम्मा बिल्लाह। घर का बच्चा बच्चा यही लफ्ज कहता था, घर का बच्चा बच्चा यही बोल कहता था, घर का बच्चा बच्चा इसी अल्फाज के अंदर डूब जाता था, इन लफ्जों के अंदर। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम का हया, उनके साथ अदब शर्म, और उनकी आला साहब के साथ, आले रसूल के साथ, असहाब रसूल। अल्लाह उसका सिला देता है। रब किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता, रब उसका सिला देता है और देता है, और देता भी अपने गैब के खजाने से, और देता भी ऐसा है कि अल्लाह दौलतों और इज्जतों के दरवाजे खोल के दिखा देता है। दौलतों और इज्जतों के दरवाजे खोल के, इस रास्ते को अपना ले, इस मंजिल को ले ले। ये राहें सच्ची हैं और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, दुनिया में आखिरत भी, रिस्क भी, लज्जत भी, सेहत भी मिलेगी। ये बहुत बड़ा वाक़या है और इसके अंदर बहुत बड़ा राज है।